أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں تک ہم کل الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی ابتدا مبتدا سے ہوتی ہے جو اسم ہوتا ہے، اور اس کے متعلق معلومات جو دی جاتی ہے خبر سے دی جاتی ہے. اچھا، اس کے اصول بہت چھوٹے سے، کچھ مشکل نہیں ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے حالت رفع میں، اور اس کی جو پیچھا کرتی ہے خبر نکیرہ ہوتی ہے، وہ بھی حالت رفع میں. باقی چیزوں میں یہ دونوں بھی ایک سے ملتے ہیں. یہ واحد ہے تو یہ واحد ہے، یہ تسنیہ ہے تو تسنیہ ہے، یہ مذکر ہے تو مذکر ہے، یہ مؤنث ہے تو مؤنث. باقی کا کوئی پرابلم نہیں. تو اس میں تبدیلی آتی ہے تو خالی جو ہے معرفہ نکیرہ کا ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم اس کے آگے چلیں گے اور آگے پھر کے ڈیٹیل پڑھیں گے. اب یہاں سے ہمارا انداز پڑھنے کا اکیڈمک رہے گا. تو آپ لوگوں کو میں جو پوچھوں گا بتاتے چلنا. سب سے پہلا جملہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے. یہ گرین کلر کا میں پڑھتا ہوں، جب آپ سنیں گے آپ نہیں پڑھیں گے، جب میں بولوں گا جب پڑھیں گے آپ. پہلا جملہ ہے الاولاد. الاولاد. آپ مجھے جواب دینا ہے. کل حافظ صاحب نے بڑے محنت سے آپ کو سمجھائے کہ دونوں چیزیں حافظ صاحب دیکھیے کون بڑبڑ کرو وہ بند کرو. الاولاد یہ واحد ہے، جمع ہے، تسنیہ ہے، کیا ہے بتائیے؟ جمع ہے. جمع ہے. جمع میں ہمارے پاس دو قسم ہے، ایک جمع سالم ہے اور دوسرا جمع مکسر ہے. یہ کون سا ہے، جمع سالم ہے کہ مکسر ہے؟ اس کا واحد کا صیغہ کیا ہے؟ ولد. اولاد. اولاد. جو بھی بول رہے ہیں بالکل غلط، بالکل غلط ہے. واحد کا ولد. صیغہ، ارے رک جا بیٹے، اب ذرا رک جا. اس کا پہلا ہوتا ہے واحد، نکیرہ ہو تو ولدن اور معرفہ ہو تو الولد. ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ جب جمع میں جائے گا تو اولاد بنے گا. اگر اس کو نکیرہ لکھے تو اولادن ہوگا، اور معرفہ لکھے تو الولد، الاولاد. الاولاد. اولاد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا. یہ دوسرا جو جز دکھ رہا ہے وائلٹ کلر کا، صالحون، میں پوچھوں گا جب جواب دیں گے. صالحون یہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ صالحون یہ جمع ہے سر. جمع ہے. اوکے، ویری گڈ، شاباش. اب جمع ہے تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ یہ جمع مکسر ہے سر. جمع سالم ہے. تو آپ نے بولے پہلے جو باجی نے بولے یہ پوری طرح غلط ہے، کیونکہ آپ نے تینوں صیغوں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اونا جب آتا ہے تو یہ سالم ہوتا ہے. مسلمون، مسلمون، مسلمانی، مسلمون. اونا جب لگ کے آتا ہے تو وہ سالم ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. تو اب مجھے بتائیے جو باجی پہلے بولے تھے اس کا واحد بناؤ. مسلمون. صالح. اور صالحون یہ واحد ہے. اب اس کا تسنیہ بنا کے بتاؤ. صالحان. صالحان. اور جمع بنائیے. صالحون. صالحون. اب سب کو سمجھ میں آ گیا، یاد آ گیا پرانا؟ ہاں. ایسا اولاد کا نہیں ہوتا. اولاد میں پہلا آئے گا ولدن، ولدانی، اولادن. ٹوٹ گیا، سب ٹوٹ گیا. اس لیے ٹوٹا ہوا بروکن پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو الاولاد یہ اب اگلی بات پوچھ رہا ہوں میں.
ये आकिल है कि गैर आकिल है? आखिल है। अल सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करता हूँ आकिल किसे कहते हैं। आकिल वो शऊर वाली चीजें हैं जिनको समझ है, सोच है, इज्जत है। इंसान एक है, फरिश्ते दो है, और जिन्नात तीन। ये तीन चीजें अल्लाह ताला ने जो पैदा करी वो अकल वाले। और औलाद इंसान के बच्चे को कहते हैं, इसलिए आकिल है। क्योंकि गैर आकिल अगर जमा होता तो उसके लिए वाहिद बोनस का सेगा आता खबर की शक्ल में। ठीक है बेटे। तो सालिहुना, अब अल औलादु सालिहुना, सबसे पहले तो अपन मालूम कर लिए, इसका नंबर पता लग गया, अदद पता लग गई। अब अल औलादु ये मारिफा है कि नकिरा है? औलाद ये मारिफा है सर। ओके। और सालिहुना क्या है? नकीरा है। सालिहुना जमा। मैंने सवाल ये करा कि ये मारिफा है कि नकिरा है? नहीं सर, नकीरा है। है। तो जब मारिफा मिलता है नकीरा से या पीछा करता है तो जुमला इसमें पैदा होता है। हाँ। तो पहला हरे वाला हिस्सा मुब्तदा है, और जो रंगीन है दूसरा वो खबर। वो खबर। खबर है। तो अब खबर। इसकी इबारत अरबी में पढ़िए। अल वलदानी सालिहानी। अरे 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 अरे, कौन से? पहले को पढ़ना है। अभी तुमको वहां कहीं को गई तुम? अल अभी औलाद। अल हाँ औलादु सालिहूना। हाँ, अब इसकी इबारत का तर्जुमा अच्छी उर्दू में करो। उर्दू आती है आप लोगों को? औलाद ही, औलाद ही नेक। नेक औलाद। औलाद ही। हाँ, ये तमाम लोग बिल्कुल 100% गलत करे। कल हाफिज साहब ने जो मेहनत करे उसको तुमने बिल्कुल पारी कर क्या है? औलाद है, औलाद ये है नेक। नेक है औलाद। ये उल्टा कह को करी बेटे तू। औलाद है नेक। नेक हाँ, हाय डाली जुमला इसमें हमें है इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक हो गया सबको, एक एक का सबका प्रैक्टिस हो गया। अब आगे के सब लोग एक 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 सैंपल करेंगे, सब लोग समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, सब तैयार है? जी सर। जी सर। तो ये जो अगला आ रहा है अल वलदानी सालिहानी, इसका एनालिसिस करके जल्दी जल्दी बताना है। कौन करेंगे? पहले एक आदमी करेगा, बाकी उसके आंख पे नहीं चढ़ेंगे, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी एक करो जल्दी। अल वलदानी सालिहानी। हाँ, तो सर ये अल वलदानी सालिहानी जुमला इसमें है। आपको पहले ये बताना है कि पहला इसम की क्या हालत है, क्या है उन्हें। आप पहला ये भी मारिफा है, बताना। अल वलदानी मारिफा है। हाँ शाबाश, सालिहानी नकीरा है। शाबाश। अच्छा, अब इसकी हाँ। अदद बताइए। अदद मैं पूछते जाऊंगा, बताइए अदद ये बताइए। अल जमा वलदानी सर ये जमा सालिहानी हानी वलदानी ये है सर, ये मुसन्ना तस्निया। तस्मिया मुसन्ना है सर। दो का अल सिगा। वलदानी सालिहानी मुसन्ना है सर, ये दोनों भी। वाहिद में ये हाँ, मुसन्ना मुसन्ना है और अरे ये बस भाई बस, अरे बाबा बस, मुजक्कर। अरे भाई बस, अरे भाई बस, अरे भाई बस। ये मुसन्ना कैसा पहचाने आपको? अल वलदानी आनी कोई और बताइए, सालिहानी। कोई और बताइए। ये वलदानी अगर मुसन्ना है तो पहचानने का तरीका क्या है? अलीफ नून आए तो हानी हानी। हानि फानी कुछ नहीं। अगर ग्रामर के एतबार से कहेंगे तो दाल के बाद अलीफ आया है। अलीफ बताता हमको कि दो का सिगा है। हम्म। ये नून जो है, ये नून सिर्फ इसलिए है कि प्रोटेक्शन करे उसको। हम्म। समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आया, मगर ग्रामर मगर ग्रामर के एतबार अगर अगर ना मगर, अब से याद रखेंगे। अलीफ दिख रहा है तो मुसन्ना का सिगा है, बाकी खलास। अच्छा, अब सालिहानी क्या है? वाहिद है, मुसन्ना तस्निया है या जमा है?
ये सर तस्मिया है। कैसा पहचाने? सालिहानी, अभी आपने बोले ना उस तरीके से अलीफ आया तो और बोलो, हाँ, अलीफ दिख रहा ना, तो बोलो ऐसा हाँ, बोलना, अलीफ है, आखिरी आखिरी का लेटर अलीफ है, उसके बाद नून है, तो ये अच्छा, तस्निया है। आखिरी अब का आगे बढ़, आखिरी का अलिफ हाँ, बस 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 और नून। नहीं सर, मैं लिख के बस लीजिए। बस बस, टाइम पास नहीं करना। आप मुझे बताइए कि ये रफा है, नसब है कि जर है? अल वलदानी रफा है, नसब है कि जर है? ये जर है सर, नसब जर जर। बिल्कुल गलत है तुम्हारा। कोई और बताइए बच्चों। सर रफा है। रफा है। हाँ, रफा कैसा पहचाने आपने? सर आनी ड्यूअल के साइन नहीं है रफा हालत जी, में। रफा हालत में आनी आएगा, तो नसब जर में क्या आएगा बच्चे बताओ? आईनी। हाँ, अलीफ तब्दील होता या में, क्या में तब्दील होता? या में। या हाँ, नसब और जर में अल वलदैनी होता है। समझ में आया क्या जी बाजी? खाली भक भक नहीं करना, सुनना। तो ये अल वलदानी, इसको ये जो पहले लिखा हुआ है वो ऐराब बिल हर्फ है, ऐराब बिल हरकत है, और हम जो लिख रहे हैं ऐराब बिल हर्फ है। अलीफ बता रहा हमको कि सर ये मेरा तस्निया है। मोबाइल बोलो। तब से कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब सुन नहीं पाए हम तब इतनी देर से। अभी देख लो, अभी सुन लो। अल वलदानी में अलीफ जो है ये बता रहा है कि मुसन्ना है, दो का सेगा है, और ये जब रफा और नसब में, नसब और जर में जाएगा तो अलीफ की जगह पे या पैदा हो जाएगी और दानी का दैनी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, इसकी हालत क्या है? रफा है, इसको बोलते हैं ऐराब बिल हर्फ। अब यहाँ देखिए, सालिहानी, इसका इसका ऐराब पहचानिए। अलीफ दिख रहा कि वो नहीं? भी रफा है, वो भी रफा है सर। हाँ, तो जब डुअल का सेगा आता है तो अलीफ नजर आएगा रफा में, और जब उन्हें नसब और जर होगा तो या बन जाएगा सालिहैनी सालिहैनी। ये पक्का याद रखो, बहुत वक्त हम पढ़े, बहुत लंबा पढ़े इसको, अब फिर से गलती नहीं करेंगे, ठीक है? अब आ जाइए लाइन नंबर 2 में। अब लाइन नंबर 2 में सबसे पहला सेगा आ रहा है अल औलादु मुज्तहिदूना। मुज्तहिदूना, मुज्तहिद का मतलब है मेहनती, मेहनत कश। चलिए, अब आप में से कौन बताएंगे अल औलादु क्या है? वाहिद है, जमा है, नकीरा है, मारिफा है, रफा है, नसब है, जर है? सब बताना, जल्दी जल्दी करना, एक आदमी बताए। औलादू ये रफा है, ये मारिफा है, मुजक्कर है और जमा है। जमा में कौन सी शक्ल है? सालिम है? जमा में नहीं, मुकद्दर है? मुकस्सर है, जमा मुकस्सर। माशाअल्लाह। आकिल है कि गैर आकिल है? आकिल है सर, इंसान। माशाअल्लाह, इंसान का है। तो अपने को मारिफा मिल गया। अब दूसरा देखिए, मुज्तहिदूना के बारे में बताइए। वाहिद है, जमा है, तस्निया है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, रफा है, नसब है, जर है, मुजक्कर है, मुअन्नस, सब बताओ जल्दी करो। ये भी रफा है, ये जमा है, ये नकीरा है और ये प्लूरल जमा है। कौन सा है? जमा कौन सा जमा है? ब्रोकन है? मुस्तहिदूना, जमा सालिम है सर, ऊना आता है माशाअल्लाह। वहाँ। ऊना नॉर्मल वाले रहते हैं, जब ऊना नहीं आएगा तो उसको बोलेगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये आकिल है कि गैर आकिल है? आखिल है नस्री में। आकिल, आकिल के लिए इस्तेमाल हुई भी सिफत है ये, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताइए इसके अंदर मुब्तदा खबर क्या क्या है? अल औलादु मुब्तदा है, मुज्तहिदूना अच्छा, मुझे एक बात खबर। बताओ बाजी, मुझे एक बात बताओ। वो पहले वाले बाजी पढ़ रहे थे तो आप उनको हटा के तुम क्यों आ गए? देखिए, अखलाक बहुत जरूरी है मुसलमान के अंदर। अखलाक नहीं है तो मुसलमान नहीं है। वो पहले वाले बाजी को दो। हाँ, पढ़िए जी। इसका इसका मुब्तदा कौन है, खबर कौन है? अल औलादू मुब्तदा है, मुज्तहिदूना हाँ, खबर है सर।
तो खबर जब मिलती है अपने मुब्तदा से तो जुमला इस्मिया तैयार होता है, इसलिए बोलो ये जुमला इस्मिया जुमला है। इसमिया हो जाता शाबाश। है, जुमला अब इसमिया है। वो पहले वाले बाजी दूसरे वाले बाजी नहीं पढ़ेंगे, अब कोई नए स्टूडेंट पढ़ेंगे और उनको तुम लोग सताएंगे नहीं। चलिए, कौन पढ़ना चाहते बच्चे, पढ़ो। जी सर। अल वलदानी मुजतहिदानी। अब आपको बताना है, पहली चीज बताना है कि इसका स्टेटस क्या है, यानी कि ये एराबी हालत क्या है। मुसन्ना है सर, दोनों भी वलदानी है, मारिफा है और फिर से गौर से सुनो, मैंने क्या पूछा आपको, ये एराबी हालत क्या है। मारिफा है सर। शाबाश, मारिफा, ये भी गलत जवाब दिया आपने। मैंने कहा एराबी हालत क्या है। एराब की 3 हालतें क्या है बच्ची, बोल मेरे को। रफा, रफा, नस्ब, जर, ये आपको जो पूछे ना, जरा प्रैक्टिस करने दो मुझे, आपको जरा होशियार करने दो, आप कुछ भी बकबक मत करते जाओ। पहला मैंने पूछा इसकी एराबी हालत क्या है, तो आपके पास 3 चीजों के जवाब में से एक रहना चाहिए, रफा, नस्ब या जर। बोलिए क्या रफा है है, वो। रफा है सर। रफा कैसा पहचाने आपने। अलीफ नून से सर, ये दाल के बाद जो अलीफ नून आया। अलीफ से आनी, बोलो, अलीफ से पहचाने, बोलो अलीफ से पहचाने। अलीफ से। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है मुज्तहिदानी, ये क्या है, रफा है, नसब है, जर है। ये भी रफा है सर। माशाल्लाह। अब सेकंड बात मुझे बताइए, ये हम वसअत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से पूछ रहे हैं, इसको ये नकीरा है कि मारिफा है, पहले वाला अल वलदानी। पहले वाला मारिफा है, दूसरे वाला नकीरा है। मैं जितना पूछे उतना ही बोलना, होशियारी नहीं बताना। जी सर। पहले वाला जो मारिफा है पक्का। मारिफा है सर। दूसरा हिस्सा क्या है, मारिफा है कि नकीरा है। नकीरा है। माशाल्लाह। तो हमारा रूल क्या है, जब खबर अपने मुब्तदा से मिलती है या मुब्तदा अपने खबर से मिलता है तो जुमला इस्मिया पैदा होता है, और दोनों जुज के बीच में है डालना पड़ेगा और तर्जुमा करना पड़ेगा। अब आप अरबी में पढ़िए, अच्छी अरबी में पढ़िए पहले, फिर उसको अच्छी उर्दू में तर्जुमा करके बोलिए, जल्दी कहिए। अल वलदानी मुजतहिदानी। उर्दू बोलिए। ये दो औलाद है मेहनती। तो 2 बच्चे हैं मेहनती। हाँ, 2 बच्चे हैं मेहनती। अगर अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा, 2 बच्चे हैं 2 मेहनती, लेकिन हम उर्दू में, हमारी जैसी उर्दू है उसके हिसाब से बोलेंगे 2 बच्चे हैं मेहनती। ठीक है, 2 बच्चे मेहनती। हाँ सर। 2 बच्चे हैं। हाँ, है मेहनती। बोलो फिर से पढ़ो। 2 बच्चे हैं मेहनती। शाबाश। चलिए नेक्स्ट के अंदर आ जाइए, कौन पढ़ना चाहेंगे, जल्दी करो। अल औलादु जालिसूना। हाँ, अब जरा इसके बारे में मुझे अल औलादु के बारे में बताओ कि रफा है, नसब है या जर है। रफा है सर। ओके, और इसका खबर क्या है, रफा है, नसब है, जर है। रफा है सर। माशाल्लाह। अल औलाद मारिफा है कि नकीरा है। मारिफा है। जमा मुकस्सर है कि सालिम है। मुकस्सर है। माशाल्लाह। आखिल है कि गैर आखिल है। आकिल है, इंसान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश, एहसन की। अब इसकी उर्दू में आप इबारत पढ़िए बिल्कुल रवानी के साथ, और उर्दू भी रवानी के साथ पढ़िए, पहले अरबी पढ़िए फिर उर्दू पढ़िए। शाबाश शाबाश। अल औलादु जालिसूना, तमाम औलाद है बैठी हुई। तमाम औलाद नहीं, औलाद औलाद है। है बैठी हुई। तमाम वगैरह नहीं, औलाद ही तमाम ही रहती है, औलाद जी वलदुन एक रहता, वलदानी 2 रहते, हाँ औलादुन तमाम ही रहते। जी। पूरी तो चिल्लर पार्टी आ जाएगी, बच्चे बच्चियां सब आ जाते। ठीक है, जी बहुत अच्छा। अब इसके अंदर मुझे बताइए, इसका तर्जुमे के अंदर है कहाँ डालेंगे। खबर के मतलब मुब्तदा के बाद हम है डालेंगे और उसके बाद फिर खबर बताएंगे। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। अब जो जो पढ़ लिए उन्होंने करेंगे, जो नहीं पढ़े उन्होंने करेंगे, ये पढ़ के बताइए। जो पढ़ चुके हैं वो कतई नहीं पढ़ेंगे, जो नए हैं
آپ کو نئے لوگوں کو ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں آتا ہے تو میں سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پڑھیے بیٹا پڑھیے. الولدانی جالسانی. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے آپ. اب مجھے بتائیے آپ یہ واحد ہے, جمع ہے یا تسنیہ ہے؟ تسنیہ ڈویل. ماشاء اللہ. ایسا پہچانی بیٹے آپ؟ یہ دانی جو ہے دال کے بعد الف نون ہے نا اس سے. ماشاء اللہ. الف جو ہے سگنل ہے 2 کا. ٹھیک ہے. ہوں ہوں. اچھا اب مجھے بتائیے رفع ہے, نصب ہے, جر ہے؟ رفع ہے. اچھا اس کا نصب اور جر کیا بنے گا؟ الولدینی. اور جر؟ ولدینی ہوتا ہے یہ بھی. بہترین شاباش. اچھا اب یہاں پہ آ جائیے. جالسانی کیا ہے, نکیرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکیرہ ہے. واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے؟ تسنیہ ہے. ایکسلنٹ. تو معرفہ مل گیا ہم کو, نکیرہ مل گیا ہم کو. معرفہ جب اپنے نکیرہ سے ملتا ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب اس کے ترجمہ آپ عربی عبارت ایک دم روانی سے کہیے اور اردو عبارت ایک دم فلوئنٹلی کہیے. کما الولدانی جالسانی. اردو. دو بچے ہیں بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ ویری ویری گڈ. الحمدللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. دیکھو ڈسپلن سے پڑھے تو ہر ایک کو آتا ہے. کام کرے تو نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب جتنے پڑھے وہ نہیں کریں گے, نئے لوگ پڑھیں گے. یہ پڑھو کوئی. الاولاد صائمون. تو پہلا حصہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ جی معرفہ ہے سر. اچھا معرفہ ہے. بکواس نہیں کریں گے. رفع ہے. منہ بند رکھو, منہ پہ کنٹرول نہیں تو پڑھو ہی مت. ہاں اب بولو واحد ہے, تسنیہ ہے کہ جمع ہے؟ وہ جمع ہے سر. اوکے جمع ہے. اچھا یہ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ مکسر ہے. ماشاء جمع اللہ. مکسر ہے. عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل ہے. ماشاء اللہ. اب ادھر آ جائیے. صالحون واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے؟ جمع ہے سر. کیسا پہچانی؟ واو ہے, واو اونا. ماشاء اللہ ویری کریکٹ, بہت اچھے, بہت صحیح. اور یہ جو ہے مکسر ہے کہ سالم ہے؟ سالم ہے سر. ویری گڈ. عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ وہ عاقل کی صفت ہے. ماشاء اللہ. اب یہاں پہ عربی کی آپ جو ہے عبارت پڑھیں گے ایک دم روانی سے, اور اردو بھی پڑھیں گے ایک دم روانی سے. شما الاولاد صائمون. بچے اردو. روزدار ہیں. پھر تو تمہاری ضد جاتی نہیں. تم نے پچھلے 6 مہینے بچے اسے ہیں. ستائی تمہیں. ہاں بچے ہیں روزدار. اب سمجھے, ضد کرنا میرے کو بالکل قطعی پسند نہیں. چلو نیکسٹ کون آ رہے ہیں, پڑھیے. جو نہیں پڑھے ابھی تک وہ پڑھو. سر ہم مرد حضرات پڑھو. کوئی مرد حضرات پڑھنا چاہیں گے؟ عبداللہ ہے, ماجد ہاں یس. پڑھو. الولدانی. والدانی نہیں ہے ماجد, جی والدانی کیسا ہوتا ہے یہ؟ ارے اوکے ٹھیک. بولو برابر. الولدانی. ہاں اب الولدانی. بتاؤ مجھے, واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے؟ یہ تسمیہ ہے. شاباش. کیسا پہچانے؟ الف. ماشاء اللہ. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اوکے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. اچھا ویری گڈ. اور اعرابی حالت بتاؤ. رفع. بہت اچھے. کیسا پہچانے رفع ہے؟ ولدو سے آئیوار نکلے ہوئے. نہیں دو نپو. یہ رفع کیسا آنی آنی پہچانے؟ آنی آنی. آئینی رہ تو نصب اور جر ہوتا ہے. نصب اور جر آئینی میں آئیں گا. رائٹ. اب یہ بولو سائمانی, یہ کیا ہے؟ واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے؟ تسنیہ. تسنیہ ہے. شاباش. اعراب بولو. اعراب اس کا یہ ہے رفع. رفع.
और इसका नसब और जर क्या होगा? आने का ऊना, ईना, पढ़ो पूरा पढ़ो। साइमीना, हाँ? पढ़ो। साइमीना, 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 हो, समझ आ गया? साइमीना, साइमीना, हाँ, अल वलदानी साइमीना, साइमानी। अब बराबर। इसका जो है तुम इसको पहले पढ़ो, अरबी में इबारत फ्लुएंटली पढ़ो। अल वलदानी साइमानी, अच्छा, अब उर्दू में फ्लुएंटली पढ़ो। 2 बच्चे है बैठे हुए, है रोजा रखे हुए, रोजदार। रोजदार। इंग्लिश में पढ़ो। The 2 boys are fasting. अब सबको समझ में आ गया, सब क्लियर हो गए? Yes. अब आखिरी का एक रह गया, कोई पढ़ना चाहेंगे तो बोलो, जल्दी से करो। कौन पढ़ना चाहेंगे? हम पढ़ना सर, पहले पढ़े हुए हैं। कल नहीं, बिंतु सालिहतुन। नहीं, कोई नए वाले पढ़ने। तो मैंने क्या कहा, जो अपने पास 50 लोग हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ना रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, हमको मैसेज भेज रहे हैं, हमको पढ़ने देते नहीं बोलते बच्चे दूसरे। बिंतु सालिहतुन। हाँ पढ़ो बेटे, मैं नहीं बोलूँ, आप रुको, मैं जो पूछूंगा वक्त नहीं करेंगे, मैं पूछा तो जवाब देंगे। ये मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा। ओके, वाहिद है, तस्नीया है, जमा है? वाहिद है। वाहिद नहीं, जमा है। अच्छा, वाहिद है। पक्का सोच के बोलो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ। वाहिद है, बेनतु लड़की एक है। खामोश, जितना बोले उतना ही जवाब। इसका तस्नीया बना के बताओ। अल बिनती। तस्नीया कैसे बनेगा? अल बिनतानी। हाँ, अल बिनतानी, माशाअल्लाह। और जमा क्या बनेगा? अल बिनतूना। नहीं, अल बनातू। धीरे धीरे हम सब सीख। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो मारिफा मिल गया आपने को, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। अच्छा, अब ये रफा है, नसब है, जर है? रफा। कैसा पहचाने? पेश है इसलिए। हाँ, इसको जरा अच्छी जबान में बोलो। लफ्जन आवाज आ रही है, तू बोल के बोलो। लफ्जन। इसके पर आवाज आ रही है ना, आखिरी पे क्या तू आ रहा है ना, लफ्जन। हाँ, लफ्जन बिंतु। अल बिंतु। माशाअल्लाह। अब इधर देखो, सालिहातुन है। सालिहातुन। हातुन नहीं है, सालिहतुन। सालिहतुन। पहले इसका सा लंबा करो, सालिहतुन। माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ, ये वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? जमा है। जमा कैसा दिखेगा बेटे देखो, जमा की क्या निशानी है इसमें? है तुन का तार मरूता है। हाँ, मरबूता मुअन्नस की निशानी, जमा के कैसे? हाँ, तार मरूता है निशानी है जी। हाँ, तो इसकी जमा बना के बताओ मेरे को। सालिहातुन। 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 और इसका तस्निया क्या बनेगा? सालिहातानी। माशाअल्लाह, वेरी गुड। अब ये मारिफा है, ये नकीरा है, ठीक है? मारिफा जब अपने नकीरा से मिलता है तो जुमला इसमें पैदा होता है जी। वो कोई तो भी आवाज आलाम में देखो, हाँ क्या कर रहे, कुछ भी कर रहे, जरा बंद कर दो। हाँ, अब इसकी इबारत को रवानी से पढ़ो, अरबी में पहले। अल बिंतु सालिहातुन। सालिहतुन, हाँ नहीं है, सालिहतुन। सालिहतुन। हाँ, अब मुझे उर्दू में तर्जुमा करके बताओ। लड़की है, नेक है लड़की। अरे ये पहले पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या है? लड़की है नेक। वो जो कर रहे ना आप, वो सिफत मौसूफ में करते, उल्टा करते, ठीक है? अच्छा, समझ। अच्छा, सबको अच्छी प्रैक्टिस हो गई जी। चलिए, आज हम अब से हमारा ये तरीका होगा
कि हम लोग जो है आधा लेक्चर मेरा जुमला इसमिया पढ़ा करेंगे और आधा लेक्चर माजी का वर्ब पढ़ेंगे। तो हम माजी के वर्ब को टुकड़े 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 करके पढ़े थे, अब एक सीरीज में पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़े हुए हम, आपको कोई नई चीज नहीं है, खाली आपको जुमले पढ़ना है और मायने बोलना है। कौन बोलेगा पहले, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, जरा कोई पढ़ के सुनाइए मुझे। फअला। नहीं, ऊपर मालूमात लिखे। अच्छा, मोस्टली अरबिक वर्ड्स आर बिल्ट फ्रॉम अ नहीं, फिक्स्ड उसके सेट ऊपर कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा। ट्राइलेटरल वर्ब्स। सुलासी मुजर्रद। ट्राइलेटरल वर्ब्स। ट्राइलेटरल का मतलब क्या है, 3 हर्फ से बना हुआ फेयर। समझ आया माजिद? जी जी। जी सर। ये कौन सी जात के वर्ब है जिसके जो अंदर trilateral। 3 कलिमात होते हैं। अब सही। इंग्लिश में बाकी पढ़ माजिद। Mostly Arabic words are built from a fixed set of 3 core letters. 4 It's लेटर co- समझ गया ना? Yes, 4 3 core मतलब letters. बॉस। Basic. तीनों भी मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट में ब्लैक में बुलेट पॉइंट के साथ पढ़ो। It's called as a triliteral verbs, sulasi mujarrad. है माशाअल्लाह। उसके नीचे का पढ़ो। A triliteral verb in Arabic is a verb with a 3 consonant root forming a foundation for word family with a shared core meaning. हाँ, अच्छा मुझे बताओ, रूट बोले तो क्या? Base, foundation. ओके, रूट को क्या बोले थे हमने? मादा। बोलो। Madda. मादा का मतलब है उसके अंदर, जैसा कोई आम रहता है, आम का फल रहता, आम रहता है उसके अंदर कोई रहती, कोई के अंदर का सीड जो रहता है उसको मादा बोलते हैं। जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो नीचे कलर पे, पिक्चर क्या है? Fa'ala. फाला। तो पहले फा के नीचे क्या लिखा हुआ है? फा कलिमा। Fa kalima. और आइन के नीचे क्या लिखा है? Ain kalima. आइन कलिमा। लाम के नीचे क्या लिखा है? Lam kalima. लाम कलिमा। अच्छा, फा कलिमा की जगह सब्स्टिट्यूट करो फा, रे और जी। Kharaja. और अच्छा। हाँ, रजा। अब इसके अंदर मायने पैदा हो गए, जान आ गई, और इसके मायने क्या होंगे, कोई बताएंगे भाई? He went. He left. खराजा हो निकला, गया। हो गया। इतने 4 लोग नहीं बोलेंगे, माजिद पूरा पढ़ लेगा, फिर अगली स्लाइड कोई दूसरे पढ़ेगा। तो Right. यहाँ पर माजिद इसका तरीका ये नहीं है। वो एक मेल। रुक जाओ, 3 जबर दिखा आपको तो बोलना उसने, एक गायब मर्द ने किया। बोलो एक गायब मर्द ने किया। क्या किया? तो मादा दिखा रहा आपको क्या किया। मादा क्या है? खराजा। खराजा का मतलब वो निकला। वो निकला, वो एक गायब मर्द निकला। तो पहला क्या बोलेंगे? उसने कुछ किया, उसने कोई काम किया, उसने कोई हरकत किया। और हरकत काय पे डिपेंड करेगी? रूट लेटर बताएंगे आपको उसने क्या किया। समझ में आ गया? सही सही। जी। अब चलो नंबर 2 कौन पढ़ना चाहते बोलो जल्दी से। जो नहीं पढ़े उन्हें पढ़ने का है, हम पढ़े रहे ना सर। पढ़ो पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? ठीक है पढ़ी, सर। कोई पढ़। The secret signs of an Arabic verb. हाँ, तो क्या बोलते हैं अरबिक वर्ब को? Verbs अरबी में क्या? never end with tanween, that is double नहीं, vowel. खाली अरबी पढ़े, उसके पीछे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, पढ़ो। फेल है, फेल फेल। है ना वो क्या खा लिया तुमने? वर्ब को फेल बोलते हैं, अंग्रेजी का सहारा ले रहे हम खाली। ओके Okay. हाँ, चलिए पढ़े, फर्स्ट पार्ट पढ़िए। Verb never ends with tanween, that is double vowel. अच्छा, ऊपर का जो मायने क्या है, द सीक्रेट साइंस ऑफ अरबिक वर्ब के मायने क्या है? मतलब जो छुपी हुई निशानियां हैं वर्ब की, फेल की पहचान, छुपी हुई पहचान। निशानियां। बोलो, वर्ब को आंखों से पहचानने की खुली निशानियां, छुपी हुई वर्ब को आंखों से पहचानने की खुली हुई निशानियां। चलो ठीक है, तो पहला बुलेट पॉइंट क्या है, बहुत अहम है, पढ़िए। Verbs never end with tanween, that is double vowel. मतलब तनवीन से कभी भी
आखिरी हर्फ पे कभी भी तनवीन नहीं आएगी फेल के। वो वर्ब के अंदर लाम कलिमे पर कभी तनवीन नहीं आती, जी, वो इस्म वर्ब की के अंदर खासियत। हाँ हाँ हाँ, वो इस्म होता है जिसके आखिर में तनवीन आती है। तनवीन तो आती है। माजी के वर्ब के लाम कलिमे पे कौन सी निशानी आती, जरा पढ़ो। फतह आती सर, हाँ, फतह यानी कि जबर आती। सब लोग सुन रहे हैं जबर बच्चों? आता है। जी जी सर। हाँ, तो ये आखिरी बार पढ़ा रहा हूं मैं माजी, इसके बाद माजी रिपीट नहीं होने वाला है। आपको पेन और पेंसिल लेके बैठना है या फोटो लेना है, इसके ऊपर नोट्स बनाना है। वर्ब के अंदर 3 कलिमात होते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। फा कलिमे पे जबर आना जरूरी है, लाम कलिमे पे जरूरी है जबर आना। आइन कलिमा तब्दील शुदा है, आप जान सकते हैं, फाआला हो सकता है, फाईला, फाऊला, ऐसा सब हो सकता है, लेकिन तनवीन कतई नहीं आती। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जी हाँ 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 बेटा, तुम जो पढ़ रहे थे सेकंड पॉइंट पढ़िए। Verb never starts with the definite article. अल, खलास, वर्ब में अलिफ लाम कभी नहीं आती। हाँ, ओके, वर्ब में तो अलिफ ये लाम भी कभी नहीं आता, वो तीनों। नाउन में सिर्फ इस्म में आ सकता है। हाँ, तो 2 मारिफा। पॉइंट नाउन के हैं। नाउन के आखिरी लेटर पर तनवीन आती, नाउन से पहले अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, लेकिन वर्ब में ना तनवीन आती ना सकता है। अल आती। और फिर रिपीट करो, जी, पास्ट टेंस के वर्ब में उसकी सिग्नेचर क्या है, उसका डीएनए क्या है? फा कलिमा जबर रहना और लाम कलिमा जबर आना आइन कलिमे में तब्दील हो सकता है, राइट? यस सर। चलो, अब जरा एक अहम चीज पढ़िए, तीसरा पॉइंट किसरा बेटे? Verbs never end with the genitive case, that is zir यानी और कसरा। मैं जरा लोग उर्दू में पढ़ता हूं। सब लोग उर्दू वाले, सब वो लोग उर्दू वाले लिखते चलिए। वर्ब के वर्ब 3 के कलिमा, आखिरी, फा कलिमा, रुको मैं बताता हूँ। वर्ब के 3 जी, कलिमात होते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। और लाम कलिमे पे जेर कभी नहीं आता, माजी के अंदर कभी कभी नहीं आता, नेवर एवर। तो क्या आता माजी के अंदर? पहचानने का तरीका क्या है? फा कलिमे पे जबर, लाम कलिमे पे जबर, आइन कलिमा तब्दील शुदा। समझ में आ गया सबको? यस जी ओके, सर। पढ़ो बेटे, आगे पढ़ो। Verbs never end with ता मरबूता। वर्ब के आखिरी हर्फ पे कभी भी ता मरबूता नहीं मिलेगा। वेरी गुड, आ गया सबको समझ में आ गया? ये Yes. हो गया वर्ब को आंखों से पहचानने का तरीका। चलिए, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं बोलिए, मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। इंग्लिश जिसको आती है इंग्लिश में पढ़िए, मैं उर्दू में बोलूंगा, उर्दू वाले लिख के लेंगे। सर हमने पढ़ना है। पढ़िए बेटे। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के मायने लिख लीजिए। टेंस का मतलब है हाल, हाल के तगय्युरात। अरबी वर्सेस इंग्लिश। और उर्दू में हाल 3 होते हैं। पहला माजी होता है, जो बीत चुका हुआ काम है, जैसा मैंने खाया। मुजारे होता है, मैं खाता या खा रहा हूं। और फ्यूचर में जाएंगे तो मैं खाऊंगा। ठीक है बच्चे, समझे क्या? जी सर। जी जी सर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 3 सेपरेट टेंसेस, अंग्रेजी के लिखा। पहले लिखा मैंने वॉक, वॉक, वॉक का मतलब चल, वॉक का मतलब चला, चला। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखने में गलती हो गई, तो ये हो गया पास्ट टेंस। प्रेजेंट में क्या होगा? वॉकिंग, चल रहा। फ्यूचर में आएगा विल वॉक, चलेगा। ऐसा 3 टेंस होते हैं अंग्रेजी और उर्दू में। आगे पढ़िए। Arabic combines your 3 tenses into just 2 main forms. तो जरा गौर फरमाइए, इंग्लिश में माजी, मुजारे और मुस्तकबिल होता है। इसको सादी उर्दू जबान वाले बोलते हैं माजी यानी कि बीता हुआ, मुजारे यानी हाल, और फ्यूचर को उर्दू वाले मुस्तकबिल बोलते हैं। तो ये 3 होते हैं इंग्लिश में, बाकी दीगर जबानों में भी अलबत्ता
अरबी में दो ही टेंस होते हैं, एक माजी होता है और हाल होता है। बात समझ में आई कि आपको? ये जी तीन सर। जाकर कितने बनते हैं टेंस? दो ही बनते हैं। कितने बनते हैं? दो ही बनते दो। हैं। जरा नीचे का कॉलम पढ़ लीजिए। एन एक्शन दैट इज डन इन द पास्ट, जो हरकत माजी में हुई। ज़रबा, एक गायब मर्द ने मारा या पीटा, ये बीती हुई बात है। अब जरा इधर राइट हैंड साइड पे आ जाइए। ये मुजारे अभी तक आपको सिखाए नहीं, लेकिन देखिए ज़रबा के अंदर कुछ तब्दीली करके एक नया वर्ब बनता है, उसका नाम है यदरिबु। यदरिबु के दो तीन मायने होते हैं। एक तो आदतन हाल होता है, वो मारता है या वो मार रहा है, और वो मारेगा। तीन चीजें एक में ही कंबाइंड कर दिए। जैसा पुराने जमाने में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और घड़ी एक ही जगह आती थी, वैसा ये क्या हो गया, एक टेंस तीन का काम कर रहा। कौन? यदरिबु। यदरिबु का मतलब वो मारता, ये आदत है, वो मार रहा है, काम चालू है, या वो मारेगा। यानी दो टेंस इसमें जुड़ा दिए गए हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ। समझ गए सबको? यस। जी सर। ये सब चीजें आपको बताई गई थी, खाली अभी आपकी मालिश हो रही इसकी, ताकि आप भूल ना जाना। हाँ चलिए, नेक्स्ट कौन सा स्टूडेंट है जो पढ़ेगा इसको? मेरा यहां लिखा है, इज इट ए वर्ब? है क्या ये वर्ब या नहीं? क्विक चेक। आपने अरबी की इबारत पढ़कर मुझे बताना है कि ये फेल है कि नहीं। पहला वर्ब आ रहा है आपके लिए, अल किताबु। ये फेल है क्या? नहीं नहीं है सर, नहीं है सर। नहीं क्यों है नहीं सर। है? अल आया बोल के। तीन अल क्या इसमें इसमें आया तो अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। और उसके नीचे आ रहा है ज़ाहबा। अब जरा वर्ब गौर है। करो। ये गौर फेल है। ये फेल फेल है। है सर। पहले और आखिरी हरफ तक जबर है। हाँ, पहला लेटर उसको फा कलिमा कहते हैं, बीच के लेटर को आइन कलिमा कहते हैं, और बा को लाम कलिमा कहते हैं। तो यहाँ दो चीजें हमको साफ नजर आ रही है। पहले लेटर पर जबर है, आखिरी लेटर पर जबर है, और दरमियान में भी जबर है, इसलिए ये वर्ड है। फेल है। अब उसके बाद का आ रहा है कलमिन। कलमिन। अब मुझे बताओ ये फेल है नहीं कि है। नहीं? नहीं है क्यों सर, नहीं है? तनवीन है इस पे, इसलिए नहीं है। लास्ट में तनवीन आ रही सर, ये लास्ट इसम हाँ, है। मैं नाम करने की तनवीन आ रही। अच्छा चलो, तनवीन आने के बाद में वो इसम होता है, कट गया। यक्तुबु, ये फेल है क्या? मुजारे नाउन। है सर, तो फेल है। ये जो है, फेल अभी है मैं सर। चलते, हाँ मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ कि लाम कलिमा, बोलो सब लोग। लाम लाम कलिमा। कलमा लाम कलिमा लाम कलिमा, लाम कलिमे पर पेश होगा, बोलो। लाम लाम कलिमा। कलमे पर पेश होगा। होगा। बा कलिमे पे सुकून होगा। अच्छा। बा कलमे पर सुकून होगा। तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। वो तो वो प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा। चार। अब उसके बाद आ रहा है सय्यारतुन। अब जरा मुझे चेक करके बताना, ये वर्ब है क्या, ये इसम है क्या, ये इसम है सर। इसमें है। आखिर में तनवीन आई। है और ताल मरबूता है। तनवीन है। एक सेकंड में देखना, ता मरबूता देखा तो वो फेल हो ही नहीं सकता। समझ में आया? यस। जी सर। अच्छा, अगला माजिद साहब बताएंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। जी। फिर मस्जिदी, ये इसम है, फेल है या हर्फ है? ये हर्फ है। फी बोल तो हर्फ में आ गए। हाँ, आगे क्या लिखा वो बताओ। मस्जिदी यानी वो मस्जिद के अंदर है। हाँ? नहीं, मैंने तो वो मायने नहीं पूछा। इसमें इसमें है वो। हाँ, कैसा पहचाने माजिद? अलिफ लाम आ गया ना उसमें। ओके, और क्या पहचाने? बड़ी बड़ी बात बताओ, क्या पहचाने? अल मस्जिदी, वो ये इसके बाद आने वाला कभी भी वो रहेगा, इसमें रहेगा। नहीं, मेन चीज है हर जर दिखा, बोलो।
हर जर दिखा। तो बात तो इसमें रहता, खत्म। इतने सितम्बे करने की कोई जरूरत नहीं है। हर जर जब नजर आता ना, राइट। फी हर पे जर है। यस, तो इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नजरों से देखना, खट 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 खट। तो आपका पहला काम है, अभी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, नोट, इसको सेव करो। सर एक सेकंड ना ले रहे। जी सर। और जब आपका पूरा कोर्स खत्म होगा और जो लोग आखिरी तक रहेंगे और जो पढ़ेंगे समझेंगे, उनको ये मटेरियल किताब की शक्ल में दिया जाएगा। ये फिनिश हो गई किताब, फिनिशिंग के साथ बन गई है, ठीक है। ओके ये लेकिन ओके। तब तक का नहीं दी इंशाल्लाह जाएगी सर। जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। सर जो पहला वाला स्लाइड था ना सर, जिसमें नाउन और वर्ब का डिफरेंशिएशन था, पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, उसका स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज। नहीं, ये पहला ले लो, मैं पूरे देता हूँ। ये पहला ले लीजिए, इंट्रोडक्शन। बाबू दूध हो गया। ये हो गया कौन सर। पुकार रहा है? हाँ, अगला ले। और यकीन मानिए कि इतना डिटेल सिस्टमैटिकली वर्ल्ड वाइड कोई किताब नहीं है। मैं फखर नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये आपको जो दिया जा रहा है, द बेस्ट। यकीनन। बेशक। चलना। ये लिख लीजिए, जल्दी करिए। अब आप पे मुनहसर है, ये प्रिंट करा के आपकी किताब बनवा देना, आपका काम। जी सर। इंशाल्लाह सर। और चारों किताबें इससे मिलेंगी आपको। ये आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जुमला इस्मिया, इस्म, तमाम चीज, 4 बुक्स देंगे आपको जब आपका खत्म होता मुजारे इंशाल्लाह सर। पे है। मुज़ारे सब देंगे के। चलो ये लो, जल्दी से करो। हो गया? हो गया सर। ये यहाँ तक आए थे हम। अब आखिरी 2 स्लाइड रह गए। अब देखिए, जी। फा आइन लाम, ये साचा है, बुनियादी साचा है, लेकिन अरबी में 80% जो जुमले आते, 3 हर्फ पे 3 जबर आते, 80% जुमले, 80% वर्ब ऐसे आते। क्या आते? फा आला। 15% आते फा ईला। 5% आते फा ऊला। अब जरा देखिए आपको क्या लिखा है, फ़हीमा। ये कौन से तरीके से, फ़अला है, फ़उला है या फ़इला है? क़ईला। फ़इला आ गया आपने 15% वालों में से, राइट। और फ़हीमा का मतलब लिखा है, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। उसने समझा। और उसने कहां से निकाले भाई? ही कहां से आया माजिद यहाँ पे? आखिरी में माँ है ना, फहीमा। माँ को कर दे, माँ ना बाप। लास्ट पे सर जबर है। पास्ट अरे टेंस का पहले रुको, तुमने फायर गलत करे। फहीमा और फहीमत, ये पहला और चौथा पे सीगा जबर है। है। अरे नहीं यार, छठा मत। पहला सीगा और चौथा सीगा माजी का होता है, तो उसका करने वाला मुस्ततिल होता है, इनसाइड डूअर है यहाँ पे। हो हाँ, बाकी कुछ नहीं बोलना। सही। हुआ है। अब मैंने पूछा सब्जेक्ट कैसा क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट इसलिए आ रहा है कि माजी का पहला सीगा है, उसने समझा। अब उसके बाद का क्या रहा माजिद, मुझे बता, एराब के फायदा उठाकर मुझे बताओ। दर्स है लेसन। लेसन। हाँ, लेसन तो मैं बोल दिया। अब ये क्या रोल प्ले कर रहा सेंटेंस बता दो। इन्हें प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट नहीं रहता इसमें। पहले मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता हाँ, है। ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट को अरबी में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम। मफूल। मफूल। तो यहाँ पे हुआ जो है फाइल है, फहीमा ये फिएल है, और दरसा मफूल है। इसलिए वो नस्ब हालत में आया है।
हाँ नसब दिखा रहा है आपको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल यहाँ से शुरू करेंगे आप। यस जी सर। क्योंकि आप देखो कितना भी पढ़ाई तो, क्योंकि हमारी आदत कैसी है, खास मुसलमानों की आदत क्या है, हम घर में किसके बाप को नहीं सुनेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर हम पढ़े तो वहां पे एक लाल किताब है, उसमें लिखा हुआ है अम्मा मर जाती। क्या लिखा हुआ है? हमने अगर रोज की रोज तालीम हासिल की तो अम्मा मर जाती। यही ब्राह्मण है, दूसरे कौम के लोग फजर में उठते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनकी अम्मा कभी नहीं मरी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए। मुसलमान पंक्चर जुड़ाने वाली कौम है। बोलो कौन है उन्होंने? पंचर जोड़ाने रखो। हाँ उन्होंने वही रहने वाले हमेशा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या कैफ हालुकुम या तुल्लाबल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ हालुकुम या अय्युहत तुल्लाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बखैर या नाम अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ हालुकुम या तुल्लाबल लुगतल अरबिय्या। नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, क्या क्या जुमले इस्तेमाल हुए? पहला जुमला कैफ हालुकुम, क्या कैसे हाल हो? कैसा है हाल? कैफ हालुकुम है ना। उसके बाद में तमाम तुम तो आप जब फोन करा ना, जब भेजना था तुमको या तुल्लाबल कुरान। आए कुरान की तारीफ हमारे क्या हाल है? माइक किसका चालू है? कौन बातें कर रहे हैं? ये कुरान के तालिब इल्म। दूसरा जुमला या अय्युहत तुल्लाब। या अय्युहत तुल्लाब। कैफ हालुकुम या अय्युहत तुल्लाबु। तीसरा या तुल्लाब लुगतिल अरबिय्यत। सर मीनिंग मैंने ये बता दीजिए। मैंने ये 3 जुमले आप लोगों के सामने इस्तेमाल किया। इसी के जरिए से मैंने आप लोगों से सवाल किया कि आप लोग कैसे हैं। सबसे पहला है कैफ हालुकुम, कैसा हाल है तुम सबका, या क्या हाल है तुम सबका। अल्हम्दुलिल्लाह। या तुल्लाबल कुरान, कुरान के तालिब कुरान के स्टूडेंट्स। हाँ ए कुरान के स्टूडेंट्स, ए कुरान के तलबा, ए कुरान के तालिब इल्मों। ये है। अब ये कैसा बना?
तुल्लाबा حرف अल الجر कुरानी, तुल्लाब जो है इस पे ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और अल कुरानी हालत जर में है, तो ये दोनों मिलके मुजाफ मुजाफ इलैहि हो गए, काकी के मायने आ जाते। हाँ, कुरान के तालिब इल्मो। उसके बाद है या अय्युहत तुल्लाबु कैफा हालुकुम या अय्युहत तुल्लाबु, ये दूसरा जुमला है, कैसा हाल है तुम लोगों का, क्या हाल है तुम लोगों का, ए तलबा। हाँ, उसके बाद है कैफा हालुकुम या तुल्लाबा लुगतिल अरबिय्यती, अरबी लैंग्वेज। अरबी जुबान के तलबा। मीनिंग लिख दीजिए सर, याद रहेगा। नहीं, मीनिंग लिखना नहीं है, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको अपने नोटबुक में लिख के रखिए। ये जुमलों के जरिए से हम एक ग्रामर सीखने वाले हैं इंशाल्लाह आगे की क्लास में, आज नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको अपने नोटबुक में लिख के रखिए, और ये याद रखिए, पहला आया तुल्लाब अल कुरान, दूसरा आया अय्युहत तुल्लाब, तीसरा आया तुल्लाबा लुगतिल अरबिय्यती, ये 3 जुमले, ठीक है। तीसरा जुमला क्या बोले, लुगतिल अरबी, तुल्लाबु लुगतिल अरबिय्यती। लाइट चालू करो जनाया, किचन का बंद कर दो जल्दी। हाँ, बंद कर दो, इधर उजाला बहुत आ रहा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये जो जुमला है ये हम रोज सुनते, कब इस्तेमाल होता है ये, फजर की अजान में होता ना, और रमजान में जोहर की अजान में होता, नहीं हमेशा होता है, नहीं फजर में होता, हमेशा होता है। अच्छा, नहीं आजकल थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है नौजवानों के लिए, खास तौर पे जो दोपहर में उठते, आज का माहौल है तो जोहर में आज ऐसा है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जोहर में बोलना चाहिए। हैदराबाद जैसा हमारे बड़े बड़े शहर है, नांदेड़ में भी कुछ है ऐसे, तो बहरहाल उनकी सुबह जोहर में होती है। हाँ जी जी जी, तो जोहर में हम ये बोल सकते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो मजाक था ये, जो पहले से तय हुआ है बस वही पे उसी पे हमको चलना है। उसके बोर्ड पे लिखा हुआ जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये अजान के अंदर ये जुमला इस्तेमाल होता हय्या अलल फलाह के बाद, फजर की नमाज में, फजर की अजान में जी। तो हम आज इसके मायने तो हमको मालूम है, क्या है मायने, नींद से बेहतर नमाज बेहतर है नींद से, नमाज बेहतर है नींद से, या नींद से बेहतर है नमाज, जो भी मायने हमको मालूम है। तो आज हम इसका इजरा करेंगे, वो मायने हमारे एकदम परफेक्ट है, किस लफ्ज के क्या मायने हैं आज हम उस पर गौर करेंगे, और उसका ग्रामर भी देखेंगे हम कि हमने अभी तक का जो ग्रामर सीखे उसका इस्तेमाल इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर हमारा इसका देखने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे पिछला जो सबक हमने पढ़े, क्योंकि उसी को लेके उसी का इस्तेमाल करके हमको इसका इजरा करना है। जैसा कि मुरक्कबात हम अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारा पढ़ने का जो टॉपिक स्टार्ट हुए वाला है वो है मुरक्कबात, फ्रेजेस। तो मुरक्कब सबसे पहले 2 किस्म का है, कौन सा है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब
नाकिस। ना मुकम्मल हो नाकिस। हाँ, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम क्या है? जुमला। जुमला है। जुमला कितने किस्म का है? 2 किस्म का है। दो किस्म का। कौन सा कौन सा? या जुमला जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। इस्मिया और फेलिया। फेलिया। जुमला इस्मिया इस्मिया फेलिया। यानी कि ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत इस्म से होती, नाउन से होती। और जुमला फेलिया यानी कि ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत फेल से होती, वर्ब से होती। तो जुमला इस्मिया के अंदर भी 3 अहम जुज है। कौन से कौन से? मुबतदा, खबर और खबर बिल खबर। और मुतालिक खबर। मुब्तदा खबर मुतालिक बिल खबर। मुब्तदा खबर और मुतालिक बिल खबर। अच्छा, जुमला फेलिया के भी हमने पढ़े, वो कौन से हैं? याद है क्या किसी को? मफूल। फेल फाइल मफूल सर। फाइल मफूल। फेल फाइल फाइल मफूल। मफूल और मुताल्लिक बिल फेल, इसमें भी एक रहता। मुताल्लिक फेल या मुताल्लिक बिल फेल, जो भी आपको आसान लगे। तो ये जुमला फेलिया के अंदर है। फेल फाइल मफूल मुताल्लिक फेल। मुब्तदा खबर मुताल्लिक खबर, ये जुमला इस्मिया के 3 है और जुमला फेलिया के 4 है। अगर हम इन दोनों को गौर करेंगे तो यहां पे एक कॉमन वर्ड है इन दोनों के अंदर भी। यहां पे है मुताल्लिक खबर और यहां पे है मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक खबर जुमला इस्मिया में यानी कि खबर के बारे में मजीद मालूमात, और जुमला फेलिया के अंदर मुताल्लिक फेल यानी कि फेल के बारे में मजीद मालूमात, ज्यादा इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। यहां पे है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेडिकेट खबर। हाँ, तो ये हो गया जुमला इस्मिया और ये हो गया जुमला फेलिया। अब हमने मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में देखे, वो कौन सी? मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इंसारी और मुरक्कब मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। कल मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट नोट, याद है आप लोगों को? वो क्या है? किसी को याद है? क्या सर? कल एक शॉर्ट नोट बताया था मैंने याद रखने के लिए। हाँ बताए थे सर। बिंग। हाँ, भूल गए? BING। नहीं, मुताल्लिक खबर के बारे में। अब याद आया? मुताल्लिक खबर हमेशा इसम के पीछे लगती मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें बनता है। हाँ, वो तो उसका उसूल है, उसके बगैर तो होता ही नहीं। मैंने बताया था कि मुताल्लिक खबर हमेशा मुरक्कब जारी होता। हाँ, याद आया? यहाँ लिखा हुआ है सर। है ना लिखेगा? है। माशाल्लाह। उसको क्या करो, एक पेपर फाड़ो, उसका एक छोटी बोतल आधा लीटर की पानी भरना है, उसको गोल करके उसमें डालना है और रोज वो पानी, आधा गिलास पानी लेना दूसरा और उसमें थोड़ा मिला के पीना, तो याद हो जाता। जान दो सर, गले में बांध देंगे ताबीज। अच्छा, ठीक है। ठीक, तो ये याद रखना है कि मुताल्लिक खबर हमेशा कौन सा मुरक्कब मिलेगा? मुरक्कब जारी। ये याद रखिए आप, बहुत काम में आने वाली चीज है ये। मुताल्लिक खबर मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी हमने सबसे पहले सीखे। हरफे जर के बाद आने वाला इस्म दोनों आपस में मिलके मुरक्कब जारी बन जाते, और यही मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया के अंदर बहुत अहम किरदार निभाने वाला है।
قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا مرکب جاری کا جملہ اسمیہ کے اندر. تو یہ بات یاد رکھیے کہ متعلق خبر ہمیشہ ہمیشہ مرکب جاری ملے گا، مرکب جاری کی شکل میں ملے گا، ہمیشہ 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 مرکب جاری کی شکل میں ملے گا. اور یہی مرکب جاری متعلق خبر جملہ اسمیہ میں بہت اہم کردار نبھانے والا ہے قرآن کے گرامر میں. ٹھیک ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے اور اس کو ختم کریے. تو 4 مرکبات ہم نے سیکھے: مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب جاری. تو مرکب جاری جملہ اسمیہ کے اندر ہمیشہ کیا بنے گا؟ متعلق خبر بنے گا. تو اب یہی گرامر کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس جملے کا اجرا کریں گے. تو لکھا ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اب ہر ایک لفظ کو سب سے پہلے الگ کرنا ہے، اس کی پہچان کرنا ہے اسم، فعل اور حرف میں. تو سب سے پہلے ہے الصلاۃ. اب الصلاۃ کے بارے میں بتائیے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ یہ سر ہاں اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ الف لام ہے اور ایک اور نشانی یہاں پہ آ گئی تا مربوطہ کی شکل میں. تو اس وجہ سے یہ ہو گیا اسم، ناؤن ہو گیا. اب اسم آ گیا تو شروعات یہاں اسم سے ہو رہی، تو ایسا اندازہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جملہ اسمیہ ہو سکتا. تو جملہ اسمیہ ہو سکتا، اس وجہ سے ہم اس کو ڈاؤٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیں گے. اب الصلاۃ اسم پہچان لیے. جبھی بھی ہمارے پاس کوئی بھی اسم آتا یا ہمارے ذہن میں کبھی اسم ایسا نام آ بھی گیا تو ہمارے پاس 4 فارمولے آنا، ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ آنا چاہیے، DING، ڈنگ. ڈنگ. تو اس کا ڈنگ نکالنا ہے، دیکھنا ہے. الصلاۃ سب سے پہلے ڈی معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ڈیفینیٹ یا انڈیفینیٹ؟ معرفہ ہے. تو ڈی کے اعتبار سے یہ ہو گیا معرفہ. اس کے بعد آئی یعنی کہ اعراب. اس کی حالتیں 3 ہیں: رفع، نصب اور جر. حالت رفع ہے. اس کے بعد اس کا n یعنی کہ نمبر، عدد، واحد، ثنیہ، جمع. واحد ہے یہ، صلوات جمع ہے، صلاۃ یہ واحد ہے. پھر اس کے بعد جنس کے اعتبار سے یعنی کہ جینڈر مونس ہے، اور مونس کی نشانی ہے تا مربوطہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اسم کا DING ہمارے پاس آ گیا. معرفہ ہے، حالت رفع ہے، واحد ہے اور مونس ہے. کس کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا؟ کسی کا نہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد الصلاۃ کے بارے میں آ گیا. اب اس کے بعد ہے خیرن. اب خیرن کے بارے میں پہچاننا ہے کہ یہ کیا ہے. اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے تو پھر سے DING. تو یہاں پہ دیکھو نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. سب سے پہلے ماجستر نے بتایا. اس کے بعد آئے یعنی کہ اعراب. اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے. اس کے بعد عدد، واحد، تثنیہ، جمع. واحد ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. یہ آ گیا. اب اس کے بعد ہے من النوم. اب من آ گیا اور النوم آ گیا. تو من کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. اچھا اب حرف ہے تو حرف سے ہم کو سوال کرنا ہے عامل ہے کہ غیر عامل ہے؟ عامل ہے. کیا عمل کرتا ہے یہ؟ ہاں، اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا. اس وجہ سے اس کا نام بن گیا حرف ہاں حرف جر. اور
اب یہ تو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیا آتا؟ اسم آتا، اور وہ بھی جری یہی حرف جر اور اس میں مجرور کے کمبینیشن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف جر اس میں مجرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ دونوں جب مل جاتے حرف جر اور اس میں مجرور مرکب جاری بن جاتا تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن جاتا. وہ کون سا مرکب کہلاتا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اب ہم نے ہر ایک اسم کا ڈی آئی این جی، اچھا یہ اسم ہے اس کا بھی ڈی آئی این جی نکال سکتے ہیں. یہ اس میں مجرور حالت کے اعتبار سے جر میں ہے اور معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اس کا بھی ڈی آئی این جی نکال دیے. لیکن یہاں پہ یہ مرکب بن جا رہا تو اب یہ دونوں ایک یونٹ ہو گئے. من النوم دونوں مل کے مرکب جاری بن گیا. اب دیکھو یہ جملہ شروعات اسم سے ہو رہی تو جملہ اسمیہ ہو سکتا. جملہ اسمیہ کنفرم کرنے کے لیے اگر ایک لفظ والا جملہ ہے تو ہم کو دیکھنا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا اور خبر 99% نکرہ ہونا. تو اب دیکھو مبتدا یا پہلا لفظ معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ ہے کیا، ہم کو چیک کرنا ہے. تو الصلاۃ معرفہ ہے، خیر نکرہ ہے. تو نکرہ کا پیچھا جب معرفہ کا پیچھا جب نکرہ کرتا تو جملہ اسمیہ تیار ہوتا، اور جملہ اسمیہ جب تیار ہوتا تو اس کے اندر دو جز آتے، ایک ہوتا مبتدا اور دوسرا خبر. اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر دونوں کے بیچ میں، دونوں کے درمیان میں ہے لگ جاتا، از لگ جاتا. تو یہ الصلاۃ معرفہ ہونے کی وجہ سے مبتدا ہو گیا اور خیر نکرہ ہونے کی وجہ سے خبر ہو گئی، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے یا پھر ایز آ جاتا. اب اس کا صرف یہ دو الفاظ کا ترجمہ، الصلاۃ خیر کیا بنے گا؟ نماز ہاں نماز ہے بہتر، نماز ہے بہتر. نماز ہے بہتر. اس کے بعد ہے من النوم. اب مرکب جاری آ گیا. اب مرکب جاری آیا جملہ اسمیہ کے اندر، تو جملہ اسمیہ میں مرکب جاری ہمیشہ کیا بنتا؟ متعلق خبر. اب الصلاۃ ہو گیا مبتدا، خیر ہو گئی اس کی خبر، اور من النوم ہو گیا متعلق خبر. یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا، یہ ایک آئیڈیل سینٹینس ہو گیا جملہ اسمیہ کا، جس کے اندر تینوں بھی جز ہے، مبتدا بھی ہے، خبر بھی ہے، متعلق خبر بھی ہے. اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہاں نماز ہے بہتر نیند سے. ہاں یا پھر اب ہم اس کو فصیح اردو میں جیسا بھی ہم اس کو نیند سے بہتر اپنے انداز میں بتا سکتے. نیند سے بہتر ہے نماز، یا نیند سے بہتر نماز ہے. جیسا آپ کو ترجمہ جو ہم نے بچپن سے پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے، بس ہم کو دیکھنا تھا کہ اس کا گرامر کیا ہے اور کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جملہ اسمیہ میں یا مرکبات میں ابھی تک کے کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ کھل کے پوچھئے. ابھی وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، اس میں انشاءاللہ آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی سوال ہو. جی سر اس میں الصلاۃ مؤنث کیسا ہوا؟ الصلاۃ مؤنث واو ہے تا ہے، تا مربوطہ کی وجہ سے ہوا. جی سر اگر مبتدا اگر مؤنث رہا تو ایسا ضروری نہیں ہے نا کہ خبر بھی مؤنث ہی رہے. وہ مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہی آتی، لیکن یہ ایکسیپشن ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا کہ بہتر ہے. اب یہ بہتر جو لفظ ہے یہ مؤنث بھی یہی ہے
मुजक्कर भी यही है। कंपैरेटिव। हाँ, तो ये एक जो हमने शुरुआत में मैंने लफ्ज बताया था, हमने नमाज की शुरुआत की जो तकबीर है अल्लाहु अकबर, तो अकबर जो लफ्ज है उसी से ये बना खैरुन। ये असल में ओरिजिनल है अख्यरु, लेकिन उसको थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, इस वजह से उसको आसान बना दिए, खैरुन कर दिए। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आता खैरुन। अगर खाली सिर्फ खैरुन अगर लिखा हुआ कहीं भी आपको मिला तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर उसके बाद मुरक्कब जारी के साथ मिन आ गया अगर, तो फिर ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये कंपेयर हो रहा, बेहतर नमाज किससे है? नींद से है। अगर यहां पे मिनन नौम नहीं आता, खाली आता अस्सलातु खैरुन, तो फिर जब इसका तर्जुमा होता कि नमाज सबसे बेहतर है। सही बात, ये कंपेयर हो रहा नहीं इससे। अब ये कंपेयर हो रहा नौम से, नींद से, इस वजह से ये सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में आ गया। अब आ गया नमाज बेहतर है नींद से। हाँ, बेटर देन स्लीप। क्या बताया आपने? जमा जी, जमा सलातुल अस्सलातु का जमा होता सलावात। सलाम में इस्तेमाल सलावातुल्लाह अलैहि। सर मुब्तदा और खबर में मारिफा और नकीरा के अलावा जो ING हमारे पास रहता है वो हमेशा सिमिलर ही रहना चाहिए, है ना? कि ऐसा मतलब यहाँ जैसा हुआ है वैसा भी हो सकता है। हाँ, ये जैसा हुआ वैसा भी हो सकता। मुअन्नस है तो मुजक्कर खबर आ सकती जी। लेकिन ये कभी मैच नहीं होता, मारिफा और नकीरा हाँ, नहीं कभी इसमें मैच नहीं होता। जैसा रफा वाहिद और मुअन्नस में डिफरेंस आ सकते। हाँ, सिर्फ मुजक्कर और मुअन्नस में डिफरेंस आ सकता, अच्छा ये दोनों में नहीं। अच्छा जी। वाहिद वाहिद, रफा रफा, इसमें नहीं आ सकता। ये आ सकता कुछ कंडीशन में जहां पे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आमीन। और कोई सवाल? 2-3 जगह लिख दिए सर। मुताले से खबर, मुताले खबर हमेशा हमेशा मुरक्कब जारी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। 2-3 जगह लिख दिया। हाँ, अच्छा है अल्फाज जी। सर जो अल्फाज हरफ जैसे शुरू होते वो मुरक्कब जारी रहते, मुरक्कब जारी रहते। जो अल्फाज हरफ जर से शुरू होते नहीं, हरफ जर एक सेपरेट है और उसके बाद आने वाला इस्म सेपरेट है। तो हरफ जर के बाद जब भी इस्म आता तो दोनों मिलके मुरक्कब जारी बन जाते हैं। हरफ जर और आगे वाला लफ्ज। हाँ, जैसे फिल बैती। हाँ, फिल बैती, ये जो फिल फी है हरफ जर है और अल बैती इसमें मजरूर है, दोनों मिलके मुरक्कब जारी बन गए। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सबको समझ में आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए, मेरा आप लोगों से एक सवाल। सालिम जमा मुकस्सर के बारे में बता दीजिए। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जी, मिनन नौ मुस्लिम। का वो हाँ, मिनन नौम का। हाँ, इसका रफा नसब जर नहीं निकाले क्या? निकाले थे ना, मैं जुबानी निकाल दिए थे हमने। जी सर। मिनन नौम, अन-नौम मारिफा है और एराबी एतबार से जर है, वाहिद है और मुजक्कर है। इसका इस वजह से नहीं निकाले थे क्योंकि ये हरफे जर के साथ मिल गया, दोनों मिलके मुरक्कब जारी बन गया था, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी इसका DING निकालने की।
वही पूछ रहे थे हम, इसके निकालना है। हाँ, मुस्लिमुन ये एक वाहिद इस्म है। मुस्लिमुन कोई एक मुसलमान मर्द, और इसको अगरचे डुअल बनाना है, तस्निया बनाना है या मुसन्ना बनाना है तो उसके लिए निशानी क्या है? अलिफ और नून ज़ेर नहीं, तो ये बन जाता मुस्लिमानी। और इसको जमा बनाना है तो मुस्लिमून आ जाता मुस्लिमूना, वापिश मुस्लिमूना। वापिश मीम वाव नून आखिरी में आ जाता है, यहाँ पे अलिफ नून आखिरी में आ जाता है, तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना। ये एक तरीका है, ये एक बुनियादी तरीका है कि वाहिद से तस्निया बनाना, तस्निया से जमा बनाने का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज रहते, ऐसे अल्फाज जुबान में इस्तेमाल हुए जो इस पैटर्न के ऊपर नहीं आते, इस तरीके पे नहीं चलते, उनका अपना एक अलग पैटर्न है बनने का। तो ये इस पैटर्न पे जो चलने वाले हैं उसको बोलेंगे सालिम, जमा सालिम, यानी कि कहीं से टूटा हुआ नहीं है। उसी तरीके से दूसरा एक नाम है किताबुन, और इसको तस्निया बनाना है तो किताबानी। लेकिन जब इसका जमा बनता तो किताबूना नहीं बनता, ब्रोकन प्लूरल। हाँ, ब्रोकन प्लूरल है, कुतुबुन ब्रोकन प्लूरल, कुतुबुन बनता। तो ये किताबूना नहीं बन के कुतुबुन बना। अगर किताबूना बनता तो सालिम होता, ये कुतुबुन बन गया, इसकी तोड़ दिए, इसको बीच में से तोड़ मरोड़ दिए इसको, तो इस वजह से ये मुकस्सर हो गया। हाँ, जमा मुकस्सर और जमा सालिम, यही फर्क है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा साइंस नहीं है ये, रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, और कोई सवाल? नहीं सर ये कितना दिन से चल रहा है क्लास? ये क्लास 2 महीने से चल रहा। आप ज्वाइन नहीं किए थे शायद? सर मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ खाली। 1 महीना? एक या ये 13 तारीख 14 तारीख को है, हो जाते 2 महीने। अक्टूबर की 13 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई थी, नवंबर दिसंबर 2 महीने होते। उसके 2-2 दिन अगर छुट्टी निकाले तो फिर 1 महीना, सवा महीना छोटा। सर ये छुट्टी संडे मंडे को होता है? हाँ जी, सवाल पूछिए। ये जो हम सवाल की नदी में गए हुए हैं जी, तो क्या हम पहले किनारे के पास से दरमियान है या आखिरी किनारे के पास जा रहे, किधर है भाई एग्जैक्टली? असल में किसी भी जुबान का ग्रामर नहीं, मेरा बोलने का मतलब है जी जी, have you finished 20%? अभी हम कहाँ हैं, अभी हम किस लेवल पे है, ठीक है ना? तो अगर बनाए तो हाँ, तो अभी हम 25% पे है, अल्हम्दुलिल्लाह 25% अभी हम सीख चुके माशाल्लाह। और ये 25%, हाँ जी, ये मेन जी आ रही, बोलिए। सर मैं ये बोली अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ाए ना आपने, उसमें वाव लिखा हुआ था, और कहीं कहीं अपन कुरान शरीफ पढ़ते वहां पे वाव नहीं रहता, सिर्फ सलात रहता, तो वाहिद कौन सा है? देखिए, ये है, यहां पे मैंने लिखा सलात, और इसका तरीका दूसरा एक आता नहीं, गोलता रहती सर। हाँ वही ना, अस्सलातु और ये अस्सलातु दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये जो अलिफ है उसके बाद जबर आया तो अलिफ मद्दा का कायदा है, ठीक है, खींच के पढ़ना पड़ता।
لیکن اس کے علاوہ ایک اور حرکت ایسی ہے جو کھڑا زبر ہے، جو برابر ہوتی الف مدہ کے، علی مدر کی دوسری شکل ہے. تو اس کو اسی کے مطابق کھینچ کے پڑھنا پڑتا. تو یہ ہے الصلاۃ، لام کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، اور یہ جو واو لیٹر ہے یہ سائلنٹ لیٹر ہے، اس کا کوئی کردار اس کے اندر نہیں ہے. اس کو صلواتن ابھی نہیں پڑھنا ہے، یہ ہے صلاتو. اور اصل طریقہ صحیح جو ہے وہ یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مادہ ہے صاد، لام اور واو. 3 روٹ لیٹر سے میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک اسم تیار ہوتا، تو صاد، لام اور واو ہے. یہ طریقہ بھی ہے لکھنے کا، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے. اب یہ ہو گیا صلاتو. یہاں پہ اس پہ غور کرو، یہ ہے تا مربوطہ، گول تا، تو یہ سنگل ہے، واحد ہے. اب اس کو اگر جمع بنانا ہے تو پھر یہ واو جو ہے یہاں پہ سائلنٹ تھا سنگل میں، اب جمع کے اندر یہ ایکٹیو ہو جاتا، یہ بن جاتا الصلاۃ، وا اور یہ تا کھل جاتی الصلوات. جی یہ دونوں سنگولر ہے نا، گولتا والے دونوں سنگولر ہے. یہ گولتا والے دونوں سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جی جزاک اللہ سر. آمین ویاک. جی ماجد سر کچھ آپ بتا رہے تھے. سر سر جس کا 25% چھوٹ گیا ہے، ہاں اس کا جس کا 25% ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے. جن کا 25% جو ابھی تک کے کلاس میں ہوا چھوٹ گیا، اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا، اور یہ آفر میں ہے آپ لوگوں کے لیے فری ایک دم. اس میں کوئی خرچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس میں صرف دینا ہے آپ کو اپنا وقت. جی تو یہ جو 25% چھوٹے ہوا ہے، ہاں یہ جو ڈیلی کلاسز ہوتے ہیں نا، ان کی ریکارڈنگ بھی ہوتی باضابطہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ڈیلی روزانہ. تو آپ وہ ویڈیوز ایک ایک سے ہاں گروپ میں ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ تکلیف انشاءاللہ کریں گے، گروپ میں ڈال دیں گے. گروپ میں بھی آ رہا ہے سر، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے نا جب چاہے تب. نہیں گروپ میں ایک مرتبہ ڈال دیں گے. کبھی کبھی کیسا ہوتا تھوڑا دقت ہو جاتی، ان کی آسانی کے لیے گروپ میں. ہم نے تلاش کیا تو ملا نہیں ہے. اب نہیں میں کلاس کے بعد انشاءاللہ پورے چینل کی لنک آپ کو شیئر کر دیتا. آپ وہ چینل لیجئے، اس میں کلک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے. خاص طور پہ سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن وہ آٹومیٹک آپ کے فیڈ میں آ جاتے ہو. سر ہم نے سبسکرائب بھی کیے اور کامنٹس بھی کیے سر اس پہ. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، کامنٹ بھی کیجئے. ہاں کامنٹ کیجئے. تو چلیے آج یہاں پہ رکیں گے. کل ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی ہے. دعا کی درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. صحیح فہم کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. معلومات کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا، بعض حکومتیں ایسی ہے بعض جگہوں پہ جہاں پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا حکومت کی پابندی کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرعی احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان بنا دے. ہمارے لیے ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور ہم تمام کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تمام کا بہترین سے بہترین مستقبل بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے
उनके हम्म, اس میں ہمارے تمام رشتے دار یا دوست احباب، ہمارے پڑوسی یا جتنے بھی امت مسلمہ میں مسلمان مرد عورتیں جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سر سر آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے، ہمارے بچے قرآن کے اس قرآن فہمی میں شامل ہو جائیں، 4 بچے چاروں، میری دلی خواہش ہے، دعا بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو قرآن سے جوڑ دے، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، کیونکہ ماں کی دعا بچوں کے لیے بہت بہترین بابرکت ہے۔ سر چلیے انڈیویجل رکیں گے نہیں، یہاں سب پہ۔ کے بچے بولیے۔ سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے، ہم تمام کو۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ یہ کہتے وبحمدہ، ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم صبح السلام کے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا جزاک دوسرا اللہ کل شیئر کر دیجئے گا یا ابھی شیئر کر دیجئے۔ جی جی بالکل۔ جزاکم اللہ شکریہ، خیر۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔